हेलो एंड जय हिंद माय फेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन सभी का कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2026 का स्टेज 1 क्लियर हुआ है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें नेक्स्ट किस प्रोसेस से पास होना है। सो बिफोर मूविंग अहेड, दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट मी, दिस इज़ माई सेल्फ। Hi once again, you are listening Lalish Singh and I am previously recommended for Coast Guard Assistant Commandant 2025 batch, and I've cleared multiple exams like CDS. I've cleared it 3 times, UPSC CAPF 2024, UPSC NDA and FCAT 2 times, and also this Coast Guard 2 times. I've cleared Coast Guard again this time. So shortly let us discuss the agenda of this video. So in this video I will be discussing with you 3 things: documents to be uploaded, then documents to be carry on the day of PSB, and what will be the procedure of PSB, because this is somewhat different from the traditional SSBs that we generally face during our Army, Air Force and Navy entries. So let us shortly have a look on the documents to be uploaded. So we have to be uploaded 10th mark sheet plus passing certificate, again the same for 12th mark sheet and passing certificate, then degree certificate or graduation. Then we have to submit also our year wise mark sheet. If you have done your 3 years degree, then you have to submit 3 years, first year, second year and third year wise mark sheet. So same goes for the BTech if you have completed that in 4 years. And if you are a NCC candidate, then you have to apply and if you have mentioned in your application form while applying for the exam, now you have to produce your certificate of NCC or B certificate. Category certificate means if you have applied from SC, ST or EWS or any other OBC category, so you have to produce your caste certificate now. Others means if you are taking any age relaxation, so these kind of other kind of documents you have to upload right now. Now let us understand or let us discuss what documents actually need to be carried on the day of PSB. So we have to carry all these previous documents that we have uploaded in original copy, and we have to make sure that we are carrying at least 3 sets of xerox. Then along with this we have to carry a character certificate with 3 copies, and also we have to make sure that we are carrying 12 recent passport size photographs with blue background. So these are the documents that we must carry on the day of our PSB reporting. Now let us discuss the procedure of PSB. So PSB is nothing. If we are, let us first understand the full form of PSB. Means Preliminary Selection Board. This is nothing but kind of a screening process in our traditional SSBs. So in our traditional SSBs, same procedure is followed here, like documentation followed by OIR and then PPDT. So here OIR is known by a different name, which is CCBT. So CCBT full forms stands for Computerized Cognitive Battery Test. This is somewhat similar to our OIR, but the basic difference is that OIR जो होता है हमारे पास वो पेन पेपर पे होता है ऑफलाइन, जो हमारी ट्रेडिशनल SSB आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की होती हैं। और यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास जो CCBT यानी कि जो कोस्ट गार्ड वाले करवाते हैं, वो प्रोजेक्टर पे हम क्वेश्चन डिस्प्ले करते हैं और वो गायब होता रहता है। मतलब एक टाइम के लिए टाइम लिमिट होता है काफ़ी, जैसे कि मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो टाइम लिमिट 5 सेकंड का है, कोई डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो टाइम लिमिट 8 या 10 सेकंड का है, एंड आफ्टर दैट पीरियड दैट क्वेश्चन विल डिस्प्लेड ऑफ। सो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम क्वेश्चन को रीलुक नहीं कर सकते, जैसे कि हम OIR में कर सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करके उसको सॉल्व करके देन जो बाकी का लेफ्ट ओवर टाइम होता है उसमें हम आकर के जो बचे हुए क्वेश्चंस होते थे उनको हम देख सकते थे और ट्राई कर सकते थे अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता है, आपने अगर ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को देख लिया और उसको सॉल्व कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ आप उसको भूल जाइए। तो इसमें क्वेश्चन सेम वही होते हैं, कभी आपको मिरर इमेज मिलती हैं, कभी आपको वाटर इमेजेस मिलती हैं, कभी हमें मिसिंग नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सभी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। दैन PPDT, तो सब हमें पता ही है। इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो किसी भी तरह के SSB के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसी सेम प्रोजेक्टर के द्वारा हमें एक हेजी पिक्चर डिस्प्ले की जाती है जिसका टाइम होता है 30 सेकंड, और उन 30 सेकंड्स में हमें उस पिक्चर को ऑब्जर्व करना होता है। जो भी हमें ऑब्जर्व करना है, लाइक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एज, मूड, जेंडर, लाइक दिस।
एंड वॉट इस पर हमें 1 मिनट मिलती है। ऐसे हमारे पास एक सैम्पल सीट होती है, इस पर हमें पहले ही अपना चेस्ट नंबर और ये सब जो डिटेल्स हैं बेसिक वो फिल करवा देंगे। फिर आपको पिक्चर डिस्प्ले की जाएगी 30 सेकंड्स के लिए। आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे जो भी आपको वो ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, उनका एज, मूड और जेंडर, ये टाइप। आप फिर इस 1 मिनट आपको मिलेगा उस एक्शन लिखने के लिए। और जो स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर आपको और डिटेल्स मेंशन करनी है उस 1 मिनट के लिए। फिर 1 मिनट के बाद वो आपको एक और बीप या जो उनके पास एक विसल टाइप का होता है उसको बजाएंगे। फिर आपको 4 मिनट मिलती हैं अपनी स्टोरी लिखने के लिए। फिर आपकी स्टोरी जब 4 मिनट बाद लिख जाएगी, जमा हो जाएगी, आपको कुछ 10-15 मिनट का गैप मिलेगा, आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर आपको कॉल किया जाएगा फॉर योर इंडिविजुअल नरेशन फॉलोड बाई GD। जब आपकी GD जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत आपको 5 मिनट के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। और जो क्लियर होंगे, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। जो नहीं होंगे, गुड लक, आप आगे देखिए। सो टिल देन, हाँ, फिर PSB के बाद फिर जब FSB क्या है, इसका किस तरीके से होता है, कुछ चेंजेस इस बार आएंगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ PSB। टिल देन आई विश यू अ गुड लक। थैंक यू।